ویلکم بیک۔ تحریک انصاف مذاکرات کی خواہاں کیا حکمت عملی مرتب کی گئی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور خیبر پختونخوا میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ علی محمد خان صاحب، آج آپ نے دیکھا، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو ایک طرح سے دہشت گردی سب سے پہلے بھگتتا بھی ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان سے بات چیت ہونی چاہیے۔ آج اسحاق ڈار صاحب باقاعدہ نہ صرف ملاقات ہوئی ہے افغانستان میں، بلکہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس پر بھی بات ہوئی ہے، ٹریڈ کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، تو اب آپ اس کو خوشائن قرار دیں گے؟ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، میں خوشائن سمجھتا ہوں جو ہمارے وزیر خارجہ گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ میں ایک سوال رکھنے کا حق بھی رکھتا ہوں کہ دیر آیت درست آیت، لیکن اتنی دیر کیوں کی؟ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، کہ جو ایک بہت بڑا اپرچونٹی جناب عمران خان صاحب نے کریٹ کی تھی ماضی قریب بلکہ ماضی بعید میں، آخری بار اگر اسلامک امہ پاکستان میں اکٹھی کی تھی تو وہ بھٹو صاحب نے 70s میں کی تھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے افغانستان میں امن لانے کے لیے، اور افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے، اور یہ میں نہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں، 2 دفعہ اسلامک امہ کو اکٹھا کیا اور ایک ماحول بنا دیا امن کا، ایک گفتگو کا، ایک ڈائیلاگ کے ذریعے یہاں پورے علاقے میں ایک ڈیولپمنٹ کا ماحول، اور پھر نیٹو کی ایک پرامن طریقے سے انخلا۔ یہ بہت بڑے کارنامے تھے اس وقت کے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف جب رژیم چینج ہوئی ہے تو اس کے بعد جو کچھ ٹائم شہباز صاحب کا تھا، اور اس کے بعد جب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، اور یہ سال سوا سال یہ سارا کا سارا ضائع ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا جو موقع ضائع ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لیکن اب بھی اگر انہوں نے ایک سٹیپ لے لیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب آپ آگے بڑھیے اور اس پورے خطے کو پرامن بنانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کیجیے۔ اچھا، لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ کریڈٹ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو، آپ کی نظر سے شاید طلال چودھری صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ بھی نہیں گزرا، اور اس سے قبل بھی بار بار وہ تحریک انصاف کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نرم گوشہ رکھا ہے دہشت گردی کی طرف، اپنا کام کرنے کے بجائے خیبر پختونخوا کی حکومت بار بار جرگوں کے حوالے سے واویلا مچاتی ہے۔ ایک تو یہ بات آج طلال چودھری صاحب نے بھی کہی، اور ماضی میں بھی اور بار بار شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کون لے کر آیا ان دہشت گردوں کو واپس، وہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، معروضی حالات کا جس کو علم نہ ہو تو یہ بڑی غیر سنجیدہ سی، میں سمجھتا ہوں سطحی سی گفتگو ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، طلال جو ہیں میرے سے عمر میں تھوڑے سے کم ہیں، لیکن پولیٹیکل ہم نے کریئر اکٹھے سٹارٹ کیا تھا، لیکن بعد میں پھر انہی غیر سنجیدہ کچھ کاموں کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن یہ معاملہ سیاست کا نہیں ہے۔ آپ وہاں جنوالے سے یا پنجاب کے ایک ایسے حصے سے تعلق رکھتے ہیں جو میرے بھی دل کے سارا بڑا قریب ہے، پورا پاکستان، مجھے اتنی محبت پنجاب سے ہے جتنی اپنے ادھر خیبر پختونخوا جو میرا گھر ہے، لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس تپش کا، اس حدت کا نہیں پتا جو ادھر ہم فیس کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ ایک ایسی کرسی پہ ہیں طلال صاحب جو اس وقت اسٹیٹ کی کرسی ہے، اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہے، آپ نے بڑی ذمہ داری دکھانی ہے۔ دہشت گردی کی جنگ سے ہم نے اکٹھے لڑنا ہے، ہم نے اکٹھے اس کو جیتنا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دوسرا معاملہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ جو یہاں موومنٹ ہوئی ہے طالبان کی، جس کا الزام یہ عمران خان صاحب کے سر لگا رہے ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا فیکٹ چیک کر لیں۔ یہ اس وقت اسمبلی میں نہیں تھے، لیکن فیکٹ چیک کر لیں کہ وہ جو میٹنگ ایک ہوئی تھی جس کو وزیر اعظم عمران خان نے چیئر کیا تھا، اس میں تو کوئی اسٹریٹجک فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا واپس ریپیٹریشن کا۔ ان کی ریپیٹریشن ہوئی جناب شہباز شریف صاحب کے دور میں، جس کو باقاعدہ اون کیا تھا اس وقت کے انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب نے۔ تو یہ الزامات ایک دوسرے پہ لگانا آپ بند کیجئے۔ میں بطور ایک ذمہ دار پارلیمنٹیرین کی یہ کہتا ہوں کہ چاہے عمران خان وزیر اعظم ہو، چاہے کوئی بھی شخص وزیر اعظم ہو، ملک کے خلاف کوئی نہ کام کر سکتا ہے نہ کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ ہمارے دور میں تو ریپیٹریٹ ہی نہیں ہوئے، لیکن شہباز شریف کے دور میں اگر ہوئے ہیں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی اس لیے انہوں نے نہیں کیا ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یا پختونخوا میں دہشت گردی ہو، وہ ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا۔
अब आगे आपने क्या करना है? क्या एक दूसरे पे इल्जामात लगाने हैं या इस खिते को, मुल्क को सेव करना है? उसके लिए यू नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फॉर दैट यू नीड इमरान खान आउट ऑफ द जेल। उसके लिए इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना जरूरी है, आप समझते हैं, इस सूबे में अमन के लिए, इस पूरे मुल्क में अमन के लिए? पूरे मुल्क में अमन और स्टेबिलिटी के लिए और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये जो उस दिन ये आपका ओवरसीज का प्रोग्राम हुआ है, मैं खुश हूँ कि ओवरसीज आए हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं चंद लोगों से नारे लगवा के और एक तकरीर करके आप ओवरसीज को अपनी तरफ खींच लेंगे? नो, ओवरसीज का दिल जिसके साथ धड़कता है वो है कैदी नंबर 804। जब तक आपने कैदी नंबर 804 को बाहर नहीं लाना, ओवरसीज आपको पैसा नहीं भेजेगा, वो आपके साथ दिल से इन्वेस्टमेंट। सर, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुई हैं, आप बात कर रहे हैं कि वो पैसे नहीं भेजेंगे। मैं चाहता हूं कि वो पैसे भेजें, लेकिन आपके जो टॉप के इन्वेस्टर्स हैं वो क्या उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे? वो क्यों मौजूद नहीं थे? और क्या चंद सौ ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो करोड़ों ओवरसीज के जो बाहर बैठे हैं, उन ओवरसीज को और पूरे पाकिस्तान को एक पेज पे लाने के लिए पाकिस्तान में आपको एक पुरअमन सियासी फिजा चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर को अंदर रख के आप या पुरअमन फिजा कायम कर सकते हैं या स्टेबिलिटी ला सकते हैं, अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, आप मुझे बताइए कौन जाके इन्वेस्ट करेगा एक ऐसे मुल्क में जहां उनको ये पता है कि ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है। ये जो अलीमा आपा बाहर बैठी होती हैं सारा दिन जी, ये आप मुझे बताएं ये कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? अदालतों को तो आपने मफलूज कर दिया है। इन हालात में मैं समझता हूं कि अगर हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ अमन हो, काबुल और इस्लामाबाद में अच्छा ताल्लुक हो, तो उन मेहमारों को लाइए, उन लोगों को लाइए जिन पे लोगों को ट्रस्ट है। ये मुझे कहने दीजिए, शायद ये मेरी बात हुकूमत वक्त को पसंद ना आए, लेकिन काबुल शहबाज शरीफ पे नहीं, काबुल इमरान खान पे ट्रस्ट करता है। ये आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि काबुल इमरान खान पे ट्रस्ट करते हैं और शहबाज शरीफ साहब पर, यानी जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, उस पर नहीं करता। एक सवाल में और आपसे, उनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। अच्छा, फॉर्म 47 के लोग हैं, अपने हलकों में नहीं निकल सकते, ये कौम को क्या लीडरशिप देंगे? लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, ये वक्त अब आपस में लड़ने का नहीं है, ये वक्त कौम को इकट्ठा करने का है, और वो तब तक नहीं हो सकता। मैं आर्मी चीफ को भी ये कहूंगा, आपकी नीयत अच्छी होगी लेकिन आपकी तकारीर से मुल्क ठीक नहीं होगा। अमल कीजिए और अमल के लिए आपको इमरान खान को बाहर लाना होगा, नहीं है तो कौम के बगैर कोई भी फौज जंग नहीं जीत सकती। जंग जीतने के लिए यू नीड द नेशन बिहाइंड यू, एंड यू हैव टू हैव द नेशन बिहाइंड यू। यू नीड टू हैव द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑन वन पेज इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो तो फिर आप पिक एंड चूज ना कीजिए। अच्छा, फिर इदारों को साइड पे होना होगा, अपने आप को नॉन कंट्रोवर्शियल बनाना होगा, तो फिर सियासतदानों को अपने फैसले खुद करने दें, हम कर लेंगे फैसला। ओके, लेकिन फिर एक चीज मुझे बताइए ना कि आप जब ये बात कर रहे हैं तो इन्हीं से तो आप बात करने के ख्वाह हैं, मतलब मज़ाकरात की जो मुस्तकिल बात हो रही है। आज भी आज़म स्वाति साहब कहते हैं कि वो आरिफ अलवी साहब का इंतजार कर रहे हैं मज़ाकरात के लिए। फिर आप क्यों इनसे मज़ाकरात करना चाहते हैं जब आप कहते हैं सियासत से पीछे हो जाएं और इमरान खान साहब को बाहर आने दें? फिर हुकूमत से करें ना मज़ाकरात। हुकूमत बेख्तियार है, हमने इनसे क्या मज़ाकरात करने हैं? इंपॉर्टेंट चीज ये है, और मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत से बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन वो बेख्तियार हैं। और जो बाइख्तियार हैं उनसे क्या काम बात होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं कि उनको इमरान खान साहब ने एक मैंडेट दिया आज़म स्वाति की रिक्वेस्ट पे, अब क्या इमरान खान साहब ने ये पैगाम भिजवाया था आर्मी चीफ को या किसी भी शख्स को जिससे उन्होंने बात करनी थी कि इमरान खान को बाहर लेके आए? नहीं। क्या इमरान खान ने ये कहा था कि मुझे हुकूमत दें? नहीं। क्या इमरान खान ने ये कहा था कि कोई पर्सनल फेवर है? नहीं। इमरान खान ने तो डिमांड ही मुल्क की है कि आईन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन आप कीजिए। ये 2 साल पहले की बात स्वाति साहब कर रहे हैं। तो इन लोगों से भी अगर बात होगी, ये एस्टैब्लिशमेंट, ये फौज को हिंदुस्तान की नहीं हमारी अपनी, उनसे बात ये होगी कि जनाब मुल्क को अगर हमने चलाना है तो हर शख्स से अपना अपना किरदार अदा करना है। मुल्क को आईन के मुताबिक चलाने के लिए जो हार्ड स्टेट की बात होती है, आर्मी चीफ भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, वो ये बात की जाती है हार्ड स्टेट वो होती है जो रूल ऑफ लॉ पे चलती है। तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक तो एस्टैब्लिशमेंट का एक जो उनका ट्रेडिशनल रोल है, आपने फिर उसमें जाना है। जो पॉलिसी मेकिंग है वो तो डोमेन है सियासतदानों का, सिविल लीडरशिप का, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 1948 में स्टाफ कॉलेज का स्पीच करते हुए कहा था। तो ये बात करनी है ना कि हर आदमी ने अपना अपना रोल अदा करना है, कोई कम या कोई ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है। ओके, जितना मुहब्ब वतन कोई वर्दी पहना हुआ शख्स है उतना ही मुहब्ब वतन सिविलियन भी है। फर्क ये है सिविलियन की अपनी ड्यूटी है,
फौजी की अपनी ड्यूटी है, डॉक्टर का अपना काम है, इंजीनियर का अपना काम है। तो इसका मतलब अली मोहम्मद खान साहब, फिर आप ये कहेंगे कि जो कुछ माजी में हुआ, यानी इमरान खान साहब और आपकी हुकूमत जब थी हुआ, जिस वक्त आप सेम पेज थे, जिस वक्त वो पॉलिसीज किस तरह से आती थी, जिस तरह से किस तरह से कानून साजी की जाती थी, वो सब फिर गलत था, अब आप सीख गए हैं? मेरे ख्याल में माजी की गलतियों से सब ने सीखना है। हमारी तो सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत थी और इमरान खान एक बार वजीर आजम बने हैं। नवाज शरीफ साहब 3 बार के वजीर आजम हैं और उनके जो बरादर मोहतरम हैं वो भी 2 बार बन ही गए हैं, जैसे भी बने हैं। हम तो अपना सबक या सीखें या नहीं सीखे, वक्त साबित करेगा। क्या ये लोग अपना सबक सीख गए? ओके। जिनको हाथों में हथकड़ियां डाल के मुल्क से दर बदर किया गया, आज भी वो फॉर्म 47 पे वजीर आजम बने बैठे हैं। ये वजीर आजम की कुर्सी ज्यादा अहम है या इंसान की अपनी इज्जत और सियासत? अली मोहम्मद खान साहब, आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की नौकरी जाने वाली है, या तो वो अपनी नौकरी बचाएं या फिर माइंस एंड मिनरल्स की जो कानून साजी है वो की जाए। तो ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमारे साथ बिलाल अजहर कियानी साहब भी थे, वो कहते हैं ये तो सूबाई मसला है, ये तो खैबर पख्तूनख्वा से JUI शिकायत करे, ये वफाक से बनती नहीं है इसकी शिकायत इस कानून की। 2 बातें हैं। गवर्नर साहब को मैं ये कहूंगा, आप इस सूबे की ज्यादा फिक्र ना कीजिए, क्योंकि जिस इलाके से आपका ताल्लुक है उस इलाके ने मैंडेट तहरीक इंसाफ को लिया है। हमें पता है हमने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, और उसके लिए माइन एंड मिनरल एक्ट जब तक इमरान खान अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये पास नहीं होगा। मैं गवर्नर साहब को बसद एहतराम ये कहूंगा कि आपकी जमात को सिंध के पानी की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि वहां पूरा सिंध आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है और बयानात से नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह हमने ये कह दिया कि माइन एंड मिनरल एक्ट पास नहीं होगा जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे, तो खत्म, बात नहीं होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, सिंध का पानी तकसीम हो रहा है, सिंध का पानी ज्यादती हो रही है, आप हुकूमत में बैठे हैं, ये क्या बात हुई? आप उनको बताइए कि हम आपके साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे, हम अपोजिशन में जा रहे हैं अगर आप सिंध के पानी को छेड़छाड़ करेंगे। ये क्या बात हुई कि आप सिंध के पानी पे सियासत भी करें, हुकूमत में भी बैठें और सिंधी अवाम के हकूक की भी बात करें? तो मैं उनको ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी के पास तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैंडेट सिर्फ इंटीरियर सिंध का रह गया है। कराची से रिजेक्टेड, हैदराबाद से रिजेक्टेड, पंजाब से रिजेक्टेड, पख्तूनख्वा से रिजेक्टेड। तो जहां से मैंडेट मिला है उनके साथ तो मुनाफिकत ना करें, उनके पानी पे मजबूत स्टैंड लें। और नहीं, उन्होंने तो मजबूत स्टैंड लिया हुआ है ना, उन्होंने तो इतने जलसे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। मजबूत स्टैंड हम उनका तब मानेंगे जब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो क्लियर ये बात करेंगे कि या तो आप इस पे रिव्यू करें या हम अपोजिशन में हकीकी अपोजिशन, हकीकी लीडर इमरान खान के साथ इस पे हम खड़े हो रहे हैं। और हमारी जो करारदाद है, जो जेन्युइन करारदाद है सिंध के पानी पे, उसकी सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, आप सिंध के पानी की बात भी करते हैं और फिर आप मरकज में हुकूमत का हिस्सा भी हैं। और इनमें से 2 कनाल्स का मंसूबा कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है वो अप्रूव इमरान खान साहब ने किया था। आप रिजेक्ट कर दीजिए, खुदा ना खास्ता अगर हमने किया था आप रिजेक्ट कर दीजिए, आप स्टैंड ले लीजिए। आपके अब्बू जी वहाँ सदर मुमलिकत हैं, आप सिंध के पानी की बात करते हैं और फिर आप हुकूमत के साथ बैठ के वहाँ इख्तिदार के मजे भी ले रहे हैं। ये नहीं होगा, या सिंधियों के साथ खड़े हों या शहबाज शरीफ साहब के साथ इख्तिदार के मजे लें। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।